welcome. Today our topic is merchant of it is merchant of Venice. It is merchant of Venice. This merchant of Venice आज इसकी क्या है? इसकी plot construction है. Plot construction means simply the story. इसकी क्या है? इसकी एक कहानी है. And there are how many characters? There are 4 dominant characters. Number first one is that is who? Antonio. It is Antonio. Second one is Shylock. Number third one is Basino. And number fourth one is that is called the Purusha. These are 4 dominant characters that are present in the play The Merchant of Venice. अब इसकी स्टोरी हो रही है. ये जो एंटोनियो था, already I have told you Antonio, he was what? He was a businessman. He was a Christian merchant. And Shylock, he was a merchant but Jew. And this Antonio, he used to give the people money whenever they need the money, and he provided them. उनको देता था, ये भी देता था, लेकिन ये लोग उनसे what he was taking the interest from the people. उनसे क्या लेता था? Interest means वो उनसे क्या देता था? वो उनसे सूद लेता था. अब ये on every wherever the business was taking place, ये उनके साथ this Antonio and Shylock, they always used to fight with each other. अब एक टाइम ऐसा आया, this Basino was one of the dearest friend. ये dearest friend था किसका? ये dearest friend था Antonio का. इसको एक बार क्या करनी थी? He wants to marry because he was in love with Purusha. And ये क्या करना था? ये Basino, he wants to marry with that very girl. लेकिन इसे शादी करने के लिए this Basino, he needs what? This Basino, he needs money. This Basino, he needs what? He needs money. इसको किसकी जरूरत थी? पैसों की जरूरत थी. मगर इसके पास क्या नहीं था? Basino, he hasn't any money. इसके पास पैसा नहीं था. अब ये क्या करना चाहता था? He wants to marry with Purusha. इसके पास अब पैसा नहीं था. This Basino went to Antonio and he was saying, he was meditating कि in the time of during the needy hours, अगर मेरी मदद कर सकता है तो वो एक ही है. That is my dearest friend, that is Antonio. And in a haste way, in a jiffy, वो जल्दी Antonio के पास पहुंच गया कि मुझे पैसे चाहिए. Antonio ने उसे वापस कहा, I want to give any sort of the sacrifice for you, but I am sorry, I haven't the ready cash. मैं कुछ भी आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, but मेरे पास क्या नहीं है? I haven't the ready cash. क्योंकि मेरे शिप मैंने वो भेजा है दूसरी जगह पर, and उसमें क्या है? उसमें सामान है. वो these very ships they haven't came back. वो वापस नहीं आया. जो मेरा पैसा था मैंने उसी सामान में लगाया है. And इस वक्त I haven't any cash in my hand which I can provide. जो मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं है. अब and ये कह रहा है Basino ना, ये कह रहा है इसे कि अगर आप this time I need your help, अगर आप इस वक्त मेरी मदद नहीं कर रहे, then some other person are going to marry with Purusha. अगर आप इस वक्त मेरी मदद नहीं करोगे तो पुरुषा दूसरे के साथ शादी करेगी. क्योंकि ये जो पुरुषा है, she is the richest girl. Whenever there is a superlative degree, rich, richer and richest is superlative degree. It's a superlative degree of adjective. And इसके साथ क्या आता है? आर्टिकल आता है. कोई भी इसके साथ शादी कर सकता है. किसके साथ? पुरुषा के साथ.
अब एंटोनियो ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं अब जाऊंगा आपके खातिर, आपकी जिंदगी के खातिर मैं जाऊंगा किसके पास? आई वॉन्ट टू पे अ विजिट टू शाइला। मैं शाइला के पास जाऊंगा और उससे पैसे मांगूंगा। तो बोथ बासनो एंड एंटोनियो बोथ वेंट टू होम। दोनों किसके पास गए? शाइला के पास। इन ऑर्डर टू गेट द मनी फ्रॉम हिम, ताकि वो उससे क्या ले? ताकि वो गेट द मनी फ्रॉम हिम, ताकि वो उससे पैसे ले। अब शाइलाक ने कहा, अब जब ये शाइलाक के पास आए और शाइलाक ने उससे कहा कि इज इट पॉसिबल, देयर इज द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी दैट अ डॉग हैज अ मनी। आपने कभी सोचा है एक डॉग के पास क्या होते हैं? पैसे होते हैं। क्योंकि ऑलवेज ये जो एंटोनियो उस शाइलाक को कहता था, ये उसको ऑलवेज कहता था यू आर ए कार, यू आर ए कार। कार मींस व्हाट? कार मींस डॉग। और आप उसी डॉग के पास आप क्या आए हो? पैसे लेने के लिए आ रहे हो। क्या आपने कभी सुना है एक कुत्ते का पास क्या होते हैं? पैसे होते हैं। एंटोनियो से वापस कह रहा है if you have money and if you want to help me then provide me and I am going to pay any interest to you। अगर आप मुझे पैसा देना चाहते हो, give, not as a friend but as an enemy। दुश्मन के खातिर as a दोस्त नहीं, but as an enemy। and मैं आपको क्या देना चाहता हूँ? I want to give any sort of an interest you want from me। कोई भी इंटरेस्ट आपको चाहिए, कोई भी सूद आपको चाहिए, एंड कितना भी चाहिए, I am ready to pay for it। ये कह रहा है शाइलाक इससे कह रहा है कि आपका जो ईगो है, आपकी जो ईगो है, यहाँ आपका जो प्राइड है, घमंड है, वो अभी भी है। दिस टाइम यू नीड माय हेल्प, मगर कानून अपना वो ईगो आपने अभी नहीं छोड़ा है। नाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेक इंटरेस्ट दिस टाइम, आई वांट योर फ्रेंडशिप। मुझे सिर्फ आपकी दोस्ती चाहिए। I want only your friendship and I want to give money to you without taking interest from it। मैं आपसे सूद नहीं लूंगा and मैं आपको पैसे दूंगा। ये एंटोनियो हैरान हो गया, ये कह रहा है ये मेरा दुश्मन था, अब ये मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो गया, and that too what? That too without what? Interest। That too without interest। ये मुझे पैसा देगा, that is without an interest। And he was too much stunned and too much bewildered। वो बहुत हैरान हो गया। अब इसने शाइलाक अब देने के लिए तैयार हुआ पैसे किसको? एंटोनियो। लेकिन शाइलाक ने एक शर्त रखी, क्या रखी? What was that? What was the option? What was the thing? इसने कहा if you fail to pay me the money at the right time, I am going to take the pound of the flesh from any part of the body। अगर आपने मुझे वक्त पे पैसे नहीं दिया, मैं आपकी बॉडी से pound of flesh, ना pound, that is pound of flesh, pound it is a currency। मगर यहाँ पे करेंसी नहीं है, pound is a weighing measurement। यानी कि ये कितना होगा? pound होता है 0.4535 किलोग्राम। यानी कि आधा किलो गोश्त मैं आपकी बाड़ी से उठाऊंगा अगर आपने मुझे वक्त पे क्या नहीं, if you will fail to pay me the money at the right time, मैं आपकी बाड़ी से गोश्त उठाऊंगा। कितना? राउंड अबाउट आधा किलो मैं उठाऊंगा। एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे ऑन द फेस, ऑन द हेड, ऑन द बैक, ऑन द बटक और ऑन द हिप, कहीं भी जगह मैं उठाऊंगा। एंटोनियो इज रेडी। एंटोनियो इसने बॉन्ड साइन किया, इसने एक बॉन्ड साइन किया। एंड व्हाट वाज दैट वेरी एग्रीमेंट? व्हाट वाज द बॉन्ड? If I fail to pay the money at the right time, you are allowed to take the pound of the flesh from my body। बादशाह ने उसे कहा कि ये बॉन्ड साइन मत करो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आपके जहाज वापस आ जाएंगे। लेकिन एंटोनियो ने कहा मैंने आपको पहले ही कहा आई एम गोइंग टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ द सैक्रिफाइस, इवन द सैक्रिफाइस ऑफ माय लाइफ। किसके खातिर? आपके खातिर। मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। एंड देन इसने ये बॉन्ड साइन किया। अब एंटोनियो ने पैसे दिए, बासनो चला गया कहां पे? वो पुरुषा के पास चला गया। एंड इनकी शादी अब क्या होने जा रही?
वहां पे अरेंजमेंट हो रहा था किसके लिए? ऑल द अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द मैरिज। किस किस के दरमियान? पुरुष एंड उसी दौरान अब टाइम आया, शायद एंटोनियो को वापस देने हैं, क्या देने हैं? पैसे। अब टाइम पहुंचा, एंटोनियो फेल्ड टू पे द मनी टू होम? शाइलॉक ने केस किया। आ जाओ, क्योंकि शाइलॉक भी यही चाहता था, मैं इसकी जिंदगी इससे छीन लूं। अब इसने केस किया, एंटोनियो ने भेजा इंफॉर्मेशन किसके पास? बासनो, कि मेरी जिंदगी के ये आखिरी लम्हा था, these are the last moments of my life and I want to see you at last। यही इंफॉर्मेशन पहुंची बासनो ने, तो बासनो आया वापस। लेकिन पुरुषा को उसने कहा कि मेरा फ्रेंड जिसने मुझे पैसे दिए वो इस वक्त क्या मुश्किल में है, मुझे उसके पास जाना है। मगर बिफोर लिविंग बासनो ने हर कोई चीज, ईच एंड एवरीथिंग उसने एक्सप्लेन किया किसको? पुरुषा को। ये चला गया कहां पे? एंटोनियो के पास। एथेंस में, यानी कि ग्रीस, दैट इज द वेनिस में क्या लगा? केस चल रहा था किसके खिलाफ? एंटोनियो के खिलाफ। अब इसने शाइलॉक ने लाया था एक लार्ज एंड शार्प नाइफ उसने लाया, एंड व्हाट ही वाज शार्पनिंग इट। Who was sharpening it? Shylock। अब वो एंटोनियो को कह रहा था, just give me your bosom and I am going to take the pound of the flesh from your body because you failed to pay the money at the right and appropriate time। एंटोनियो कह रहा है कि हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने, हाँ आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे माफ कर सकते हो। उसी दौरान एक लायर आया वहां पे, LAWYER, एक वकील आया। And what was the name of that very liar? That was Balthasar। It is Balthasar। ये एक वकील आया, and this very liar, he wants to plead the case of Antonio। वो एंटोनियो का केस लड़ना चाहता था। अब ये आया बेल्थसार, एंटोनियो का दूसरा आदमी था जो इसका केस लड़ना चाहता था। किसमें? अदालत में, क्योंकि केस किसने किया था? शाइलॉक ने। अब बेल्थसार वहां पे आया in a disguised manner, in a DISGUISED, that is called disguised manner। Disguised manner means to change one's physical appearance। हुलिया चेंज करना, बहरूपिया बनना, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को क्या कर देना? चेंज कर देना, that is called the disguised। ये आया एंड इसने केस लड़ा किसका? एंटोनियो का। इसने सब कुछ ना, इसने कहा एंटोनियो को, now you have to prepare your bosom and this Shylock is going to take the pound of the flesh from your body। लेकिन वे बल्थसार इससे कह रहा है, शाइलॉक से कह रहा है कि आप एक चीज कर सकते हो, आप इसको माफ कर सकते हो। ये शाइलॉक कह रहा है कि मैं इसको माफ नहीं करूंगा। अब ये बासनो से कह रहा है, नहीं अब हम आपको पैसे भी देंगे अपने वापस जो आपने दिए थे। ये शाइलॉक कह रहा था, नहीं वो टाइम गुजर चुका, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया हूं। And I want to take only one thing, that is the मैं आपकी जिस्म से गोश्त उठाऊंगा, that too कितना? आधा केजी, राउंड अबाउट आधा केजी मैं आपको आपकी बाड़ी से उठाऊंगा। या पैसे लेना भी नहीं चाहता था कौन? अब उन्होंने इसको पैसे भी दिए थे, and he didn't accept the money। He only wants the death of किसकी? एंटोनियो की, क्योंकि एंटोनियो ही वो आदमी था जिसने उसके बिजनेस को बंद किया था, चौपट किया था। अब बासनो ने कहा एंटोनियो का, you have to be ready। अब ये कह रही है, बाल्थसार कह रही है किसको? शाइलॉक से, have you brought the scale? SCALE, scale means measurement जिसे मेजर किया जाए, उसको कितना उठाना था? a pound of flesh। उसने कहा आपने ये लाई, आपने स्केल लाई है, तराजू लाई है, ताकि आपको मापना है मुझे कितना उठाना है, क्योंकि वहां पर लिखा है only a pound of flesh, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और दूसरा ये कौन कह रहा है?
वकील कह रहा है किसे? शाला से। आपने स्केल लाया, आपने तराजू लाई है। दूसरा, हैव यू ब्रॉट द डॉक्टर, आपने डॉक्टर लाया है। अब शाला कह रहा है मुझे क्या करना है तराजू को, मुझे क्या करना है डॉक्टर को। बाल्थासार उसे कह रहे नहीं, उसमें लिखा है अ पाउंड ऑफ फ्लश, उसमें लिखा है आपको क्या उठाना है? गोश्त। उसमें ये नहीं लिखा है कि उसकी वजह से इसका ब्लड गिर जाएगा। आप उठा सकते हो पाउंड ऑफ फ्लश, लेकिन खून नहीं आना चाहिए। ये किस में लिखा है? इट इज रिटन इन व्हाट? इट इज रिटन इन द बॉन्ड। बॉन्ड में लिखा है ओनली पाउंड ऑफ फ्लश। वहां पर भी सही इतना लिखा है आपको गोश्त उठाना है। वहां पर ये नहीं लिखा है कि उसकी वजह से एंटोनियो की मौत हो जाएगी, क्योंकि वहां से कितना बहुत ज्यादा ब्लड निकलेगा। अब ये हक्का बक्का हो गया। कौन? शैला। नाउ tables are turned against him, उसके खिलाफ ही। अब शैला कह रहा है नहीं, मुझे पैसे ही चाहिए। I no more want to take the pound of the flesh from Antonio's body. मुझे अब क्या चाहिए? पैसे। अब बाल्थासार कह रहा है नहीं कि नहीं, अब पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पहले ही आपको कहा था ये पैसे ये ले लो तो इसकी जान बख्श दो। Now the case will be registered against you. अब आपके खिलाफ केस दर्ज की जाएगी, क्योंकि आपने साजिश की है, प्लॉट किया है। That is called plotted. आपने साजिश की किसके खिलाफ? एक क्रिश्चियन की जिंदगी के खिलाफ आपने केस दर्ज किया था। अब उल्टा होगा। अब ये शैला अब वहां से भागना चाहता था, लेकिन इसको भागने नहीं दिया। अब क्या हुआ? अब जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूरी प्रॉपर्टी है, उसको सीज किया गया है, उसको छीन लिया गया। एंड आधी इसकी प्रॉपर्टी इसकी बेटी को दी गई थी। इसकी बेटी को दिया गया है इसकी आधी प्रॉपर्टी, क्योंकि इसने एक आदमी से शादी की थी, that too against the wishes of her father। और इसने शादी की थी, ये शैला क्या था? He was a Jew। एंड इसकी बेटी ने एक क्रिश्चियन के साथ शादी की। आधी प्रॉपर्टी गई किसके पास? इसकी बेटी के पास। एंड आधी प्रॉपर्टी गई इसके किंगडम में, एंड अलोंग विद एंटोनियो। और इसको एक और सजा दी गई है कि अब आपको ज्यू, यू हैव टू एक्सेप्ट अ न्यू रिलीजन, दैट इज क्रिश्चियनिटी। दैट्स ऑल अबाउट किसके मतलब? दैट इज क्रिश्चियंस ऑफ मैन। दैट्स ऑल।